Hello, everyone, and welcome to High on Films. My name is Virat Nehru. I'm a film critic and a film programmer, and today I'm going to share with you a conversation I had with director Jayant Somalkar. Now, Jayant has directed a film called Sthal, a match, which won the NetPack Award at the Toronto International Film Festival, TIFF, this year. Sthal has had a wonderful journey. It premiered at TIFF, won the NetPack Award there, and then had a South Asian premiere at the Geomami Mumbai Film Festival. Then it traveled to Dharamshala International Film Festival. And for those who want to see the film, it will also be playing at the upcoming International Film Festival of Kerala next month. So if you want to catch that film, I think it'll be a great opportunity for you to watch it. I highly recommend this film. It's a beautiful, beautiful film. Sthal tells the story of a young girl, Savita, who comes from a farming background, and she has different priorities for her life, but there is a certain anxiety as her parents and her kind of societal expectations pressure her into deciding for an arranged marriage. So this film is very much about this young girl, Savita, and this kind of tussle that she has between the future that she wants for herself and the future that the society has preordained for her. One of the more interesting things about Sthal is this treatment of the film, which is quite unique and quite novel. The subject of arranged marriages in India has been dealt quite a lot. But the treatment in this film is what makes this film quite unique. It brings in a lot of elements of caste, gender, patriarchy, and how the combination and intersection of all these things places undue pressure on women. I had a wonderful, wonderful conversation with Jayant about all these issues, how the film came about, and basically this kind of Marathi new wave, which has emerged in Indian cinema, where all these filmmakers are telling stories in their own way and in their own format, experimenting and bringing in all these new ideas to the big screen, which haven't really been explored before. ये पूरा कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में होगा क्योंकि जयंत उस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है और जैसे बातचीत चल रही थी हमें लगा कि इंग्लिश इस कॉन्वर्सेशन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी तो जो आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे वो ज्यादातर इंग्लिश में होगा और काफी वक्त हो गया था मैंने भी हिंदी में कोई इंटरव्यू किया नहीं था तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे कॉन्वर्सेशन एंजॉय करेंगे तो मेरे साथ हैं जयंत सोमलकर स्थल के डायरेक्टर और स्थल की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है टिफ में नेटपैक अवार्ड टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिर जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में साउथ एशिया प्रीमियर उसके बाद धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वहां पे उनका गला भी खराब हो गया थोड़ा सा उसके बाद अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अभी अभी केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट हुई है तो स्थल की जर्नी कैसा लग रहा है मतलब जब आपने इमेजिन किया था कि ये पिक्चर बनाई थी एक छोटी सी इंडिपेंडेंट फिल्म उसको इतना प्यार मिलेगा और ऐसे ट्रैवल करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विराट। सोचा तो नहीं था कि इतना ये था कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, छोटी सी प्यारी सी अच्छी ऑनेस्ट फिल्म बनाई है। बट ये नहीं पता था कि फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट होगी और वहां पे हमें अवार्ड भी मिलेगा जो हमें मिला है नेटपैक अवार्ड फॉर द बेस्ट एशियन पैसिफिक फिल्म। तो ये नहीं सोचा था। मेरा था कि फिल्म बनाए और मामी में भी सिलेक्ट हो जाए तो मेरे लिए बहुत था क्योंकि मैं मामी फिल्म बहुत सालों से अटेंड करते आ रहा हूँ। मेरे लिए वो जैसे मैंने पहले भी कहा था एक दो जगह कि वो मेरे लिए फिल्म इंस्टीट्यूट की जैसे है। तो मैंने वही की फिल्म वही से बहुत सारे फिल्म देख के इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बनाई है। तो हाँ तो लेकिन जिस तरह से उसकी जर्नी जा रही है स्थल की जर्नी जा रही है बहुत खुश है। बहुत मजा आ रहा है ना सिर्फ मुझे लेकिन सारे कास्ट एंड क्रू को और खासतौर पे कास्ट को क्योंकि इसमें कोई भी एक्टर्स नहीं है सारे नॉन एक्टर्स है तो उनके लिए फिल्म में काम करना उसके बाद फिल्म इंटरनेशनल नेशनल पे ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात है तो बहुत खुश हैं हम लोग। तो इस जैसे कि आपने कहा एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फिल्म के बारे में इसके आइडिया के बारे में बताइए क्योंकि जब कोई सिनॉप्सिस पढ़ता है अरेंज मैरिज
तो पढ़ के ना आपको यही ख्याल आता है यार ये पिक्चर तो देखी हुई है, या ऐसी पिक्चरें देखी हुई हैं पहले। इनफैक्ट आप अभी रिसेंट पास में जाएंगे तो जियो बेबी, ग्रेट इंडियन किचन, नीरज खेवान की शॉर्ट फिल्म जूस, और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं जो इसी काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। बट फिर आप इस फिल्म का ट्रीटमेंट देखते हैं और वहां पे आप पूरी कहानी बदल जाती है। तो आप इस फिल्म के आइडिया के बारे में बताइए कि कोई सिनॉप्सिस देख के अगर इस मेरे ख्याल में जद्दोजहद में पड़ गया कि यार ये पिक्चर तो देखी देखी सी लग रही है, तो उसके आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे अगर सारी लव स्टोरी की सिनॉप्सिस पढ़े तो एक ही होती है। लेकिन हर लव स्टोरी का ट्रीटमेंट अलग होता है, उसका बैकड्रॉप अलग होता है, कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो कहानियां या थीम तो बहुत ही ऑलमोस्ट सेम ही होती है। आप बट आप कैसे ट्रीट करते हो, उसका बैकड्रॉप क्या है, वो कैरेक्टर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और वो क्या है। तो मुझे लगा कि और मुझे नहीं लगता कि अरेंज मैरिज जो सिस्टम है उस पे रूरल इन पे जितना इतनी फिल्में बनी है, इतना एक्सप्लोर हुई है, क्योंकि हमने जो भी शादियां देखी है, फिल्मों में देखी है, मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में देखी है, वो लार्जर देन लाइफ शादियां देखी है। लाइक हमने यश चोपड़ा की शादियां देखी, हमने करण जौहर की शादियां देखी है, बोल तो फिल्मों में उनकी उनकी शादियां। तो उन्होंने एक इवन मेड इन हेवन जो शो आया था अमेजोन प्राइम वीडियो पे, तो हमने एक एक तरह की शादियां देखी है जो बड़ी ही लार्जर लाइफ है। उसमें तामझाम है, ग्लैमर है, जो भी है। मुझे लगा कि जो छोटी गांव कहानियां है, जो रूरल इंडिया कहानियां है, वो बहुत कम एक्सप्लोर हुई है। और आई थिंक, और इस फिल्म की विशेषता वही है कि मैंने बहुत ही एक रियल और ऑथेंटिक जो लाइफ है और उस शादी के इर्द गिर्द वो दिखाने की कोशिश की है। तो हाँ, आपने सही कहा कि प्रोमो सॉरी सिनॉप्सिस पढ़ के इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा। मतलब कि आप, आई थिंक आप टीजर देखोगे या आप रिव्यूज पढ़ोगे तो लगता है कि हाँ ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म हमने बहुत ही ऑनेस्टली बनाई है। और बस मतलब ये बेचनी कैसी, आई थिंक ये जब फिल्म रिलीज होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर और स्टूडियो का काम है। हमने फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म बनाई है। तो हाँ, मुश्किल होता है, बट जैसे कि अब तक की फेस्टिवल जर्नी हमने देखा है, सब लोगों ने तो सिनॉप्सिस पढ़ के ही फिल्म देखने आए थे। सारे, बोल तो टोरंटो हो या मामी हो, धर्मशाला हो, जितने भी स्क्रीनिंग अब तक हुई है हमारी फिल्मों की, सारी हाउसफुल रही है, ईच एंड एवरी शो। तो मुझे लगता है कि लोग सिनेप्सिस देख के भी लोग देखने आ रहे हैं। जो स्थल है, इट्स अबाउट अरेंज मैरिज इन रूरल महाराष्ट्र। मैं जहां से आता हूँ, मैं आता हूँ महाराष्ट्र की विदर्भ एरिया से, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये तो जो रिचुअल है, मैं बचपन से देखते आया हूँ। आई थिंक बहुत सारे स्मॉल टाउन में लोग रहते हैं, वो सबने देखते आए, तो मैं भी देखते आया हूँ। तो ये कहानी मेरे जहन में बरसों से थी और मैं बरसों से देखते आया हूँ। लेकिन इस फिल्म की आइडिया में तब आई जब मैं 2000 आई थिंक 16-17 में, जब एक मेरी कजन की शादी थी, उसके लिए मैं गया था। उस एक कांदा पोहा कार्यक्रम में, जिसको हम, जो लड़की देखने का कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं कांदा पोहा सा कार्यक्रम, क्योंकि उसमें कांदा पोहा खिलाया जाता है, इसलिए उसका नाम, वन ऑफ द नेम है कांदा पोहा कार्यक्रम। तो मैं गया था, तब मैं देखा तो क्या होता है कि हमारे उस रीजन में, कि जब लड़की देखने आते हैं, लड़की एक चेयर पे या स्टूल पे बैठती है और सराउंडेड बाय फ्यू मेन, और वो सिर्फ उनको सवाल पूछते हैं। मुझे तो प्रोसेस है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। इंटरेस्टिंग मीन्स इनके लगा कि मुझे, तब मुझे लगा कि यार, और लड़की को कुछ सवाल करने की, उसको उसके पास कुछ ये नहीं होती है, और सब सिर्फ लड़के ही, या जो मेन है वही सवाल पूछते हैं। तो मुझे लगा कि यार वो जब सवाल पूछते हैं तो उस लड़की के जहन में क्या चल रहा होगा, क्या वो डर रही है कि, और जो पूरा सेटअप है ना, मुझे थोड़ा सा इस लाइक ना ऑब्जेक्टिफिकेशन टाइप का लगा था, कि कमोडिफिकेशन होता है कि लड़कियों को आप एज ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आप उसको जज कर रहे हो, आपके उसके कलर, आपके स्किन कलर पे, उसकी हाइट पे, उसके कैसे बोलती है, कैसे चलती है। तो आप उसको सवाल पूछते हो, फिर आप बाहर जाते हो, डिस्कस करते हो। तो वो जो, तो पूरा जो सिनारियो है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, क्योंकि एक होता है ना कि आप उसको एज ए कमोडिटी ट्रीट कर रहे हो। तब मुझे, जब मैं वापस मुंबई आया, तब मैंने सेपाली से, जो कि को प्रोड्यूसर भी है और मेरी वाइफ भी है, जब मैंने डिस्कस किया था, तो बोला कि, उसने कहा था कि यू शुड टेल दी स्टोरी तुम्हें, क्योंकि एक एक ना, जो पेट्रियार्की की बात हो रही है जो शादियों में, उसके बारे में तुम्हें बात करनी थी। तब मैंने एक एक्चुअली कहानी लिखी। आई थिंक विद इन 1 मंथ मैंने
कहानी लिखी। आई स्टार्टेड विद शॉर्ट फिल्म, मुझे लगा शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, बट लिखते लिखते मुझे लगा कि उसकी एक जर्नी है, उसकी जो कहानी है एक फीचर फिल्म के लिए इट्स ब्लैंक करती है, तो मैंने फीचर फिल्म लिखी। और जो लिखते वक्त मुझे कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये सब ऑब्जर्वेशन थे, अगर आपने फिल्म देखी है और तो बेसिकली इससे स्लाइस ऑफ लाइफ और उस ऑब्जर्वेशन से मुझे ईच एंड जो छोटी छोटी बातें हैं उस अरेंज मैरिज प्रोसेस की, लड़की देखने से आने से लेके पूरी शादी होने तक, वो मैंने सारी उसमें समाने की कोशिश की है। इसके बारे में बताइए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हमने एक तरह की शादी देखी है फिल्म राइट, स्क्रीन पर, और ये जो है ये अलग कार्यक्रम है जो आप राइट, देखते आए हैं अपने बचपन से लेकर अभी तक। तो राइट। इसमें क्या पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं जो आपको नजर आते हैं, और उसका प्रेजेंटेशन क्यों इतना अलग है जो कि शायद हमें अभी तक नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसमें जेंडर, कास्ट, पेट्रियार्की सब कुछ घुल मिल गया है एक तरीके से। तो उससे राइट, जो एक खिचड़ी बनी है उसके बाद, राइट, वो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें भी आपने इतने लेयर्स डाल दिए हैं उस बैकग्राउंड के, क्योंकि जैसे कि हम लड़की की बात कर रहे हैं, उसका खुद का जो बैकग्राउंड है उस वो भी इस फिल्म में आ जाता है। तो आप कहीं ना कहीं हम अरेंज मैरिज की बात तो थीमेटिकली लेके चल रहे हैं, बट आपने बाकी सारी चीजों पे भी सोशल कमेंट्री करी है, वो भी आ जाती है। तो उसके बारे में भी आप बताएं कि कहीं ना कहीं ये इतनी सिंपल फिल्म है नहीं, इसमें लेयर्स हैं काफी सारे। एग्जैक्टली। जैसे कि आपने कहा कि बाकी फिल्मों बाकी शादियों में इसमें क्या, इस एक्चुअली जो डिफरेंस है वो एक कल्चरल डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि हर रीजन की हर सोशल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हर एक का, इवन महाराष्ट्र की शादियां, साउथ की शादियां, दिल्ली या नॉर्थ की शादियां अलग होती है, क्योंकि इसका कल्चर बैकग्राउंड है कि, और कास्ट भी, रिलीजन भी बहुत मायने रखता है। हर एक का एक अलग अलग परंपरा है, अलग रिचुअल्स है हर शादियों के। तो इसलिए ये मैंने जहाँ पे सेट की है, एक महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के चंद्रपुर जिले में एक फार्मर कम्युनिटी, जो लाइक ओबीसी इसमें आता है, तो उसके अलग रिचुअल्स हैं। हो सकता है वही महाराष्ट्र के कुछ रीजन में वो रिचुअल्स नहीं होते होंगे, तो वो तो अलग अलग है। तो इसलिए ये कहानी अलग लगती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुआ है। जो हमने मेन स्ट्रीम में देखा है, तो हमने एक टिपिकल लाजन लाइव एक पंजाबी शादियां देखी है बहुत सारी, क्योंकि मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनल में भी तो लोग सिनेमा बनाया है। पंजाबी शादियां देखी है हमने, जो कि मजा आता है उसमें ना, होता है तामझाम ये सब गाना बजाना, और फिल्मों ने उसको ज्यादा ग्लैमराइज कर लिया है। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब उसमें भी लाउड है, सब चीज बहुत लाउड हाँ, है। उसमें कर दिया है, ऑब्वियसली वो और एंटरटेनमेंट के लिए था वो। हम्म। और उसमें भी नहीं कि ये प्रॉब्लम नहीं होती, सारी शादियों में ये पेट्रियार्की, ये सब जो जेंडर बाय सब कुछ है। लाइक आई थिंक मेड इन हेवन सीजन 1 में, सीजन 2 देखा नहीं, उसमें भी उन्होंने काफी जो इश्यूज है रिगार्डिंग मैरिज, उन्होंने वेडिंग उन्होंने उठाया है। तो हर जगह होती है, बट वही होता है कि आई थिंक वो कहते हैं ना कि जो पेट्रिया की बात कर रहे थे कि गांव में पेट्रिया की थोड़ी नेकेड होती है और शहरों में थोड़ी सी पॉलिश होती है। जो होती है ना कि आपको आपको दिखता है सब कुछ, यहाँ पे शहरों में होता है, बट थोड़ा सा उस पे एक क्या होता है ना कि एक कवर्ड होता है हल्का सा। तो आई थिंक सारी बातें वहां पे भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंट है, क्योंकि इट्सेल्फ ओरिजिनली वो शादी डिफरेंट है, वो कल्चर ही डिफरेंट है। और आई थिंक इसलिए ये फिल्म अलग लगती है। और बहुत सारे जो मुद्दे कवर करने की कोशिश की, क्योंकि शादी अपने आप में उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है, उसमें क्लास, कास्ट, रिलीजन, आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, बहुत कुछ होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो चीजें आई जाती है। अगर मुझे उस चीज के बारे में, इस शादी की, अरेंज मैरिज के बारे में बात करें, तो मुझे ये अपने आप बात उठानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा एक बड़ा ये क्या होता है ना, एक सतही लेवल पे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इन डेप्थ जाना है, तो मुझे ये बाय डिफॉल्ट आएगी। शादी है तो ऑब्वियसली आप होगा कि यार अरेंज मैरिज में मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आती है कास्ट। अरेंज मैरिज अपने कास्ट में होती है, अगर होती है बाहर से होगी तो फिर वो बवाल हो जाएगा। फिर वो अरेंज मैरिज में फिर होता है कि आपका लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, उसका एजुकेशन क्या होता है, तो उसका एक एजुकेशन बैकग्राउंड कितना, उनका वो अमीर है, रिच है, पुअर है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो ये अपने आप आई जाती है। तो आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट ये मुद्दे आ ही जाते हैं। फिर जैसे लड़की है, लड़की का सोशल उसका आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी है ना, उसका भी कैरेक्टर भी चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या है। तो बहुत कुछ ये शादी आई थिंक वो अपने आप क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिकली आई जाता है, इसलिए सब्जेक्ट। और हाँ,
तो मैंने वो सेल और मैंने जो कम्युनिटी दिखाई वो विलेज में, और एक फार्मर कम्युनिटी है, तो ऑब्वियसली फार्मर की बेटी की शादी, एक किसान की बेटी की शादी या उसके करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जैसा आप फिल्म में देखिए, उसके लिए उतना ही बेटी की शादी करना उतना ही जैसे उसको अपने कॉटन बेचना, अपने खेत का जो उसका जो उसका जो खेत की उपज है, जो कॉटन फार्मर है, उसको कॉटन को बेचना उतना ही इज इक्वल टू लाइक, उतना ही उसमें मेहनत करनी पड़ती है उसको, उस कॉटन के लिए सही दाम मिलने में, उतने उसको बेटी को एक सही घर, एक सही एक क्या बोलते हैं, एक मैच मिलने के लिए वो तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये सारे जो मुद्दे हैं, पेट्रियार्की हो, फार्मर डिस्ट्रेस हो, या जेंडर वॉट, तो ये अपने आप ऑर्गेनिकली आ गए। आई थिंक वो आने भी आपने चाहिए, आई थिंक तो। बिल्कुल बिल्कुल आपने कास्ट की बात करी और यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की शादियों की बात कर रहे थे, तो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा से कास्ट तो कहीं ना कहीं गायब ही हो चुकी है ना। कास्ट को हमने क्लास से रिप्लेस कर दिया है। आप सैराट का भी हिंदी रीमेक देखेंगे, जो कि सेंट्रल मुद्दा उसमें कास्ट ही है, उसका भी कास्ट इरेजर होके वो क्लास की स्टोरी बन जाती है, पर यहाँ पे वो नहीं हुआ है। तो ये कुछ बताइए कि ऐसा क्या है। मतलब मैंने छत्रपाल की भी फिल्म देखी, घात, आपकी फिल्म है, और नागराज की फिल्में हैं। तो कुछ खास करके जो ये नए फिल्म मेकर्स हैं, आपका जो एक जनरेशन है, वो फिर से कास्ट को वापस कॉन्वर्सेशन में ला रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि कास्ट नहीं थी, पहले भी बहुत सारे फिल्म में उसमें इवन नॉट मेन स्ट्रीम, बट बहुत सारे इसमें कास्ट एज एलिमेंट था। एक्चुअली ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर के ऊपर, फिल्म मेकर कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से आता है। जो मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स है, आई थिंक हिंदी में उनका एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक मकसद रहा कि प्योर एंटरटेनमेंट। आई थिंक उसलिए वो कोई भी सोशल पॉलिटिकल इशू को उतना छेड़ना नहीं चाहते थे। दे वांट एंटरटेनमेंट, एक एक जनरल, एक आम इंसान की बात करते थे वो, जिसमें वो कास्टलेस है, रिलीजनलेस है, जो भी है, जो होता ना कि एक भाई एक फिक्शियस कैरेक्टर होता था। बट बट अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में हर इंसान के पीछे उसकी कास्ट आती है, उसका उसका रिलीजन आता है। तो आई थिंक जो नए फिल्म मेकर्स है, जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, या नागराज एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से आता है, वो अपने जो लाइफ उसने जी है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छी बात है कि अभी पिछले कुछ सालों से जो छोटे छोटे गांवों से फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, जो पहले बहुत कम आते थे, तो इसलिए वो अपनी कहानियां लेके आ रहे हैं। अपनी कहानियों में वो अपनी कहानियां बता रहे हैं। अभी जैसे मुझे एक धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में एक जन ने सवाल पूछा था कि यार ये आपने ये क्यों आप ये इशू पकड़ते हो, फिल्म बनाते हो क्योंकि आपको अवार्ड मिलते हैं, ये होते हैं। मतलब कि भाई नहीं, ये तो हमारी कहानी, ये तो हमारी कि कहानी, हमारी आप कहानी एक इश्यू पकड़ के इसलिए बना रहे हो ताकि आपको अवार्ड मिले इस। अवार्ड मिल जाए, फेस्टिवल में जाए, चर्चा हो। मतलब कि इज नॉट अबाउट इशू, ये तो हमारी कहानी है ना, हमारी कहानी हमने बताएंगे तो कौन बताएगा। मैं अगर मैं वहां की कहानी है वहां की, तो मैं करण जौहर को नहीं बोल सकता कि भाई आप यहाँ पे फिल्म बनाइए, क्योंकि करण जौहर अपनी कहानी बताएगा। हम तो फिल्म मेकर जहां से आता है वो अपनी कहानियां लेके आता है, उस क्योंकि उसने वो देखा है, तो इसलिए वो ऑनेस्ट भी लगती है और आता है। और है वो तो हमने अनफॉर्चुनेटली इतनी इतनी छोटे शहरों में, गांव में इतनी कहानियां हैं कि वो अक्सर एक्सप्लोर नहीं हो चुकी, इसलिए जो फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उस शहरों से, कुछ छोटे गांव से या इस रीजन से, वो अपनी कहानियां बता रहे हैं, इसलिए उसमें वो सारे एंगल्स आ रहे हैं। आप जब कास्ट की बात कर रहे हैं या ये, वो अपने आप, आई थिंक कोई सोचता नहीं कि मैं उसमें कास्ट डालू, क्योंकि उसने बचपन से देखा है ना, वो कास्ट उसको छोड़ती नहीं है वो एंड तक। वो स्टैम्प रहेगा। आप एजुकेशन में आप स्कूल में जाओगे, आपके आपके फॉर्म पे लिखना पड़ता है कौन सी कास्ट है, क्या है, ओबीसी है, ओपन है, एससी है, एनटी है। आप कॉलेज में जाओगे यहाँ पे, तो वो छोड़ती नहीं है आपको। तो मुझे लगा कि हम फिल्मों में एक, जैसे मैं पहले कहा कि हम एक अच्छी फील गुड कहानियां दिखाना चाहते थे। हम वो सब इस होता है ना कि फिल्मों का मकसद होता है कि यार सब भूल जाओ जिंदगी में, सब जो जो वो प्रॉब्लम से भूल जाओ, एंटरटेनमेंट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा फिल्मों ने जानबूझ के किया। वो फिल्म मेकर का नजरिया है, जो फिल्म मेकर जहाज से आता है वो अपने साथ अपनी कहानियां लेके आता एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि हमारी मतलब हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म्स का एक फील गुड फैक्टर है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। पर ये मेरी रीडिंग है, और शायद हम पहले ये बात भी कर चुके हैं कि एक और पर्सपेक्टिव है कि एक बॉम्बे फिल्म मेकर जो हैं, है। उनका देखने का नजरिया अलग है कि जो पहले स्क्रीन पे या पर्दे पे दिखाया जा चुका है वही सिनेमा है, और अगर वो लाइंस के बाहर आप कलर करेंगे तो वो सिनेमा में नहीं आ सकता। तो कहीं ना Right. कहीं आप जब एक
अपनी कहानी लेके आते हैं, या नागराज अपनी कहानी लेके आते हैं, या कोई भी अपनी कहानी लेके आ रहा है, जो आप कह रहे हैं, जो अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये नई नई कहानियां सुनाने को मिल रही हैं, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। और जहां तक हम इंडस्ट्री की बात करें, सब काम रेफरेंस पे होता है। तो इसका पहले रेफरेंस ढूंढ के लाओ, तो इसका तो एग्जैक्टली। कोई रेफरेंस है नहीं। तो इसके बारे में बताइए कि जब किसी का रेफरेंस नहीं होता तो फिर वो कहानी ग्रीन लाइट होती कैसे? बहुत मुश्किल होता है। रेफरेंस में तो मुश्किल होता है ना कि टिपिकल आप एड एजेंसी में या समझते कि आपको क्लाइंट को दिखाना पड़ता है कि देखो ये ये ऐसा ये होगा ऐसा होगा, अगर इसका तो इस फिल्म का रेफरेंस नहीं है, इसके पहले कोई फिल्म बनी थी इस पे ऊपर नहीं बनी थी, तो मुश्किल होता है। बट फॉर्चुनेटली कि इस फिल्म के साथ मुझे वो मशक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये हम 4 पार्टनर्स है और हमने अपना ही रिसोर्सेज करके फिल्म बनाई है। तो मुझे वो मशक्कत नहीं करनी पड़ी कि यार ये कैसे चलेगी, ये कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, बोरिंग होगी या ये होगा वॉटेवर, कैसे बिकेगी, ये मुझे प्रॉब्लम फॉर्चुनेटली नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन सही कहा आपने, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ, क्योंकि इस स्लाइस ऑफ लाइफ जो आप इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं या गांव में होता है, जैसे गांव की जिंदगी है जो है वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई रेफरेंस, क्योंकि फिल्में बनती है तो वो होता है ना कि उसको ड्रामाटाइज करते हैं हर चीज को, उसको लार्जर लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्लाइस ऑफ लाइफ और लार्जर लाइफ में यही फर्क है। तो मुश्किल होता है। बट जैसे आपने नागराज का एग्जांपल लिया, जैसे इसकी फिल्म फैंड्री थी, ये थी, बहुत सारी फिल्में, छोटी फिल्में हैं। आई थिंक कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे इंडस्ट्री में, कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स है जो जो जिनमें विजन है कि एक वो देखते हैं कि यार ये फिल्म बन सकती है, जरूर नहीं कि वो इस उस टाइप की फिल्म बनी है क्या, बट उनको लगता है कि उनका फेथ है वो डायरेक्टर पे, लगता है कि यार ये इस कहानी को वो, तो इसका कुछ आंसर नहीं है, वो इस डिपेंड कि मेरी फिल्म बन गई इसलिए मैं आसानी से बोल रहा हूँ। तो लेकिन तो आई थिंक मुश्किल है बिना रेफरेंस के। आई डोंट नो कि इसका आंसर बहुत मुश्किल देना कि, बट अच्छे लोग बना रहे हैं, लोग अच्छे, कुछ प्रोड्यूसर्स है, अच्छे कुछ मेकर्स है जो इन फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जिनको सपोर्ट नहीं मिलता तो लोग जो इंडिपेंडेंट फिल्म बोलते हैं कि हमारी कोई बैकअप नहीं कोई स्टूडियो का, कि लोग कम पैसे में अपनी कहानी बदले, अच्छा एग्जाम्पल लाइक अचल मिश्रा, उसने धुई बनाई थी या उसने गमक बनाई है, तो बहुत ही कम पैसे में कुछ 4-5 दोस्त मिलके वो फिल्म बना रहे हैं। तो वो जो जो नया ब्रीड है फिल्म मेकर का, लोग अपनी कहानियां बता रहे हैं, एक पैशनेटली और ऑनेस्टली बता रहे हैं। तो ये उससे फिर जैसे ये फिल्म बनी तो उसको लगा कि यार इसने तो मैंने अरे यार इसने तो ये फिल्म तो जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी लगने रहा था कि अच्छी फिल्म बनेगी, लेकिन उसने बनाई, तो आई थिंक हो सकता है। लेकिन ये तो फिल्म तो अच्छी बनी है, क्योंकि हर कोई विजुअलाइज नहीं करता, हर कोई फिल्म मेकर नहीं होता। आपने कहानी लिखी है, आपको पता है कि ये मैं विजुअली कैसे देखी, कि उसका पेस क्या होगा, मैं कैसे काटने वाला हूँ। आप स्टोरी बोर्डिंग करके आप सबको करके नहीं बता सकते, बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक एक तो ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट स्टूडियो सिस्टम होता है हमारा, राइट। जहाँ पे चीजें बहुत सेट हैं कि आप सेट। रेफरेंस लेके आओ, आप ये लेके आओ, और इस तरह की पिक्चर बनेगी, इस जॉनरा में होगी, और वो कितना कमाए, मतलब कितना कमाएगी वो भी सेट हो जाता है, और एक तरीके से। राइट, वो सही भी है, क्योंकि क्या था कि आफ्टर ऑल सब बिजनेस, सब फिल्म बिजनेस है, कोई आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एक्स अमाउंट डाल रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को 2x ना भी, लेकिन मुझे x+1 तो कुछ तो आए मेरा वापस, कुछ तो वापस आए। तो एक पैटर्न चलता आ रहा है, एक एक सालों का उनका डेटाबेस है कि कैसी फिल्में चलती है, उसमें ये चाहिए, उसमें मसाला चाहिए, थोड़ा सा ये हो ये हो ये हो, थोड़े गाने हो, तो उनका भी एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस जो होता है उस पे वो फिल्म एक करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वही फिल्में पैसा कमाती है। छोटी फिल्में भी पैसा कमा रही है, बट एक होता है ना कि आपका एक फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ हद तक सक्सेस होता है, बहुत हद तक सक्सेस होता है, इसलिए वो लोग करते हैं। इसलिए वो और लाइक राइटिंग, तो फिल्म तो रिलीज होती है स्क्रिप्ट के ऊपर, स्क्रिप्ट को उनका जो जज करने का तरीका भी होता है वो टिपिकल होता है, कि अगर एक हॉलीवुड का एक फॉर्मूला है, वो सिड फीड की किताब है, वही क्रिया स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लॉट पॉइंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे इस पेज पे इंटर होना चाहिए, प्लॉट पॉइंट 2 आ जाए, यहाँ पे फिर होना है। तो उस अगर आप स्टूडियो में जाके जो लोग होते हैं स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो भी उसी फार्मूला में अनफॉर्चुनेटली उनको देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका वर्क किया है, मतलब 10 में से 7 फिल्में उनकी
फार्मूले पे वर्क की है, इसलिए उसको भी वो उसी तरह से जज करते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई पैसा लगा रहा है तो उनको लगता है कि यार ये फिल्म नहीं चली तो उसकी नौकरी जाएगी, ठीक है, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। बट लाइक स्थल स्थल अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट टिपिकल जो सेट फार्मूला उस टाइप की फिल्म नहीं है, बट फिर भी लोगों को पसंद आ रही है। तो ऑडियंस को क्या पसंद आएगा अगर आप ऑनेस्टली अच्छी कहानी बताओगे। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में आपने ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये हम सालों से कोशिश करते आ रहे हैं कुछ ऐसा तिगड़म या फॉर्मूला लगाने की कि ऑडियंस के साथ ये चलता है और ये नहीं चलता है, और ये चलता है या ये नहीं चलता है। और हर बार हम देखते हैं कि किसी को एक्चुअली में कुछ पता नहीं है कि क्या चलता है, तो एग्जैक्टली वो होता है कि हाँ, नहीं पता है। उगते हुए सूरज को नमस्कार करना बोलते हैं ना, उस टाइप का होता है कि सपोज ये आज चल गई, सपोज जवान चल गई तो यार और जवान बनाते हैं, अगर कल कोई एक छोटी फिल्म बन गई तो वो एक चलाते हैं, अगर क्राइम चल रहा है, अगर लाइक अगर आप ओटीटी की बात करें तो यार क्या करता है, क्राइम वर्क करता है, क्राइम बनाओ, लव स्टोरी करता है, लव स्टोरी बनाओ। आप आपका आपका खुद का कुछ स्टोरी टेलिंग का है नहीं, क्या वर्क करता है उस टाइप का। वो जो आप क्रिएटिव भी होते हैं कि उनका भी होता है कि यार मासी बनाओ, ये करो, फिल्मों में भी ये करो, हमें वो पूरा उनका एनालिटिक होता है, कहाँ से कितने सब्सक्राइबर आए, कहाँ से कितना हुआ है, बेसिकली तो ये सब बिजनेस, तो उसमें खराब बात कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बात है मेरा पैसा वापस आ जाए। हाँ, हाँ। इसलिए आर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी जो जो फिल्म मेकर से जो अपनी ओरिजिनल कहानियां बताना चाहते हैं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं उस चक्कर में। नहीं, मेरा मेरा सवाल करने का ये रीजन था, ये मकसद था, क्योंकि हम बात तो बहुत करते हैं कि हमें नई कहानियों को एम्पावर करना चाहिए, कंटेंट इज किंग। आप हर राउंड टेबल में देखेंगे ये चीज घूम फिर के आ जाती है। पर एग्जैक्टली उसमें एक्चुअली जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो राइट। वो बात है। तो पर आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों के अपने अपने एक बैलेंसिंग एक्ट है, कि मतलब उस रिस्क लेने में भी किसी का पैसा ही लग रहा है, तो उसको अपना रिटर्न वापस चाहिए, तो वो सही बात है। पर ये अच्छा लगा सुन के, ये दिलासा भी हुआ कि एक स्टूडियो सिस्टम के बाहर भी काम हो रहा है। एग्जैक्टली लोग अपनी फिल्में, अपनी कहानियां बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी बजट पे बन रही हो, किसी भी स्केल पे बन रही है, वो अलग बात है। पर कहानियां बन रही हैं और उस पे ऑडियंसेस भी देखना चाहती हैं। अब वो उसकी एक कम ऑडियंस है लेकिन लोग देख रहे हैं अच्छी फिल्म है, और बिकॉज ऑफ ओटीटी भी उनको एक प्लेटफॉर्म्स मिल गए बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं नॉट थिएटर के रिलीज लेकिन आप ओटीटी पे भी वो फिल्म देख सकते हैं। तो भाई फिल्म मेकर के लिए वो होता है कि आप फिल्म बनाए और लोग देखे बेसिकली, और तो लोगों तक पहुंचे फिल्म, तो हो रहा है। तो दोनों साइड से सब आई थिंक बैलेंस है या कह सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि इस फिल्म में टिपिकल कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिल्म के बीच में एक ऐसा सीन आता है जिसको देख के मैं थोड़ा चौंक गया था, मैं थोड़ा सीधा बैठ गया था, क्योंकि मैंने कहा कि ये रेफरेंस तो मुझे लग रहा है कि किसी फिल्म मेकर के बारे में जो मुझे भी बहुत पसंद है। पर मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिल्म उस सीन के अलावा किसी किसी पूरी और फिल्म में वो फिट नहीं होता। और अगर आप इसको कन्वेंशनल टेम्पलेट में डालें तो कोई ये सोचेगा नहीं कि हम एक सीन ऐसा कर देते हैं, बाकी सारी पिक्चर तो जो चल रही है वो चल रही है। तो पहले आप बताएं कि ये वाला जो सीन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शायद आपने गेस कर लिया होगा कि वो लड़की है, वो अपने प्रोफेसर के साथ एक ऑल्टरनेट रियलिटी से इमेजिन करती है, एक स्लो मोशन का सीक्वेंस है। वो बताएं मेरे गेस करने से पहले कि वो फिल्म मेकर वही है जिनकी फोटो मेरे सर के ऊपर लगी हुई है, या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ? एकदम सही रेफरेंस आपने पकड़ा है। यू कैन से इस ट्रिब्यूट टू वोंकर वाई, क्योंकि मैं जब वो सीन का वो बेसिकली पर्टिकुलर जो ट्रैक है बिटवीन सविता एंड प्रोफेसर, मैं सोच रहा था कि क्योंकि सविता की लाइफ हमने जो पूरी फिल्म की लाइफ है उसकी एक स्लाइस ऑफ लाइफ दिखाई और एकदम रियलिटी, उसकी रियलिटी दिखाई है। तो जो उसका कॉलेज का वर्ल्ड है वो मुझे उसको थोड़ा सा एस्पिरेशनल दिख रहा था, जो उसकी रोजमर्रा जिंदगी से अलग हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में उसके वही लड़के देखने आ रहे हो रहे इस टाइप का। तो मुझे चाहता कि एक एस्पिरेशन, उसके एस्पिरेशन क्या है, उसके करियर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके उसके प्यार के बारे में, तो इसलिए मैंने उसको ट्रीट वैसे किया, स्लो मोशन और बैकग्राउंड में वॉल्स बज रहा है। तो वॉल्स तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक जहाँ स्लो मोशन है और वॉल्स है तो वॉन्कर वाई की याद आती है। तो आई थिंक
इसलिए, और मैं बिल्कुल झिझकता नहीं कहने में कि इसे ट्रिब्यूट, तो मैंने ट्रिब्यूट दिया है उनको। और वो अच्छा वर्क करता है। वो जितने भी मैंने स्क्रीनिंग में देखा है, लोगों को बहुत मजा आया। और होता है ना कि आप एकदम एकदम रियल लाइफ चल रही है, सडनली गांव की वो एकदम उसका पेस है, सडनली एक आप लाइक वो बैकग्राउंड में बज रहा है वॉयलिन वगैरह, तो होते होते ना। और वैसे भी हिंदी फिल्मों में हमेशा अभी हमने शाहरुख, हाँ, होता है कि लव वैसे होता है स्लो मोशन में। हाँ, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, वेस्टर्न म्यूजिक बजता है, तो वही आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक इन्फ्लुएंस है। ये नहीं, क्योंकि जनरली यूजुअली कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस या सीन आपको फिल्म की रियलिटी से झंझोड़ के आपको कहीं और ले जाए तो हम्म, वो अब्रप्ट लगता है। बट कहीं ना हम्म, कहीं ये आपको दूसरी रियलिटी में ले जाने के बाद भी इस फिल्म का पार्ट है, और ये किसी भी कन्वेंशनल विजडम में फिट नहीं होता। तो ये सच में, अगर ये ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग नहीं होती, क्योंकि अगर आप फिर भी वही कन्वेंशनल पैटर्न या स्क्रीन प्ले फॉलो करें, तो ये पहले ड्राफ्ट में काट दिया होता किसी ने कि नहीं भाई, हाँ, ये नहीं फिट हो रहा, मतलब तुमको घुसाना है ठीक है, बट इस पिक्चर में नहीं बैठेगा। और सच कहा जरूर। जाए तो ये नहीं बैठ के भी बैठ रहा है, बिकॉज इसका अपना मजा है। वो सीक्वेंस के बाद जो कन्वे जो करना चाहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, वो पूरा कन्वे हो जाता है, और आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो और फिर वापस भी आ जाते हो इस दुनिया में। तो कहीं ना राइट। कहीं इस सीन का जो इंटेंडेड इफेक्ट और इम्पैक्ट है वो बहुत खूबसूरत है। पर यही बात है कि अगर आप टेम्पलेट या पैटर्न या फॉर्मूला को फॉलो करो, तो वो आप कभी ये सीन फाइनल कट तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आपको कोई रूल्स या किससे इससे फिल्म नहीं बनती। आपको आपका बोलता ना कि आप अपने दिल से बनाओ, तो दिल से वो दिल से बनाओ। आप बोलो कि यार ये नहीं हुआ, इस फिल्म में तो ऐसा नहीं हुआ था, इस फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो मत करो। तुम्हें आपकी कहानी क्या है, तुम्हें क्या बताना है, तुम अपनी कहानी बताओ ना। तो उसमें भाई वो है सविता का, उसके भी सपने हैं, उसके भी उसका एस्पिरेशन है, उसके आप सपनों में देखते हैं ना, सपने में तो आप कहीं भी पहुंच जाते हो। तो आप, तो उसमें गलत बात कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स राइट बैलेंस। इट्स राइट बैलेंस। बिल्कुल नहीं, गलत सही की बात ही नहीं। आई थिंक फिल्म मेकिंग तो इतना सब्जेक्टिव आर्ट है कि जो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उस फिल्म के लॉजिक से सही बैठता है तो वो सही है। एग्जैक्टली। और फिल्म मेकर की वॉइस है, हर फिल्म मेकर की अलग वॉइस होती है। हो सकता है दूसरा फिल्म मेकर होता है तो बोलते हैं यार नहीं नहीं, मुझे एकदम प्योरिस्ट और एकदम रियल ही फिल्म बनानी है, मेरे को ये मेरे फिल्म लैंग्वेज में नहीं बैठता। तो हो सकता है ये सब फिल्म मेकर की वॉइस है, आपका अपनी चॉइस। नहीं नहीं, ये मुझे सीन इसलिए भी लाना था ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलूं, क्योंकि मैं बहुत बायस्ड हूँ वॉन्कर वाई की तरफ। तो जहां भी रेफरेंस दिखता है ना, मुझे कहीं कहीं ज्यादा दिख जाता है, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा। पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा यार, मुझे यहाँ पे भी वॉन्कर वाई दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी वॉन्कर वाई दिख रहा है। मैंने कहा इस बार मैं पूछ लूं, कहीं मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं, इस बार अच्छा लगा कि नहीं, ये सही है और बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। रेफरेंस भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा करता है, और आपकी फिल्म को एक नया टच मिलता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जेन्युइनली मैं काफी सरप्राइज था जब वो आया सीक्वेंस, और मैंने बिल्कुल, मेरे ख्याल में किसी ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो सीक्वेंस वहां पे आते हुए। और उसका जो मजा आता है, अब सच में एक स्माइल आ जाती है आपके चेहरे पे कि अरे, ये एग्जैक्टली। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके लिए थैंक यू। हम एक वापस आते हैं जो आपने पहले बात कही थी, कि आपने एक फर्स्ट टाइम कास्ट के साथ काम किया, यहाँ पे बहुत नए लोग थे। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या चैलेंजेस होते हैं नई कास्ट को डायरेक्ट करने में, उनको समझने में, उनको ट्रेन करने में? क्योंकि ये इजी प्रोसेस नहीं होता है। मतलब एक तो आप नई कहानी भी बता रहे हैं और फिर नए लोगों को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको इतना एक्सपीरियंस हो कि यार ये सटल है, ये नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक टेम्पलेट बना चला आ रहा है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में हम देखते आ रहे हैं कि भाई, ये एक्टिंग होती है, एक्टिंग करो। तो इसमें एक्टिंग नहीं है, इसमें तो बस यही है कि जो है रियलिस्टिकली सटली दिखाना है। वो भी मुश्किल है, क्योंकि अगर लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है कि सटल कैसे करना है, अंडर प्ले कैसे करना है, तो वो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि लोगों को होता है ना कि कैमरा चालू है, आप एक्टिंग करके दिखाओ। नहीं नहीं, बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं कहता हूँ, मुझे भी Q&A में बहुत लोगों ने पूछा कि कैसे किया, मैं तो बड़े आसानी से बोल देता हूँ कि नहीं, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। नहीं, सीरियसली टैलेंटेड लोग हैं वो, जैसे टैलेंटेड लोग थे। बट बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ढूंढना, राइट लोगों को ढूंढना। वो तो कि होता है ना कि आधी जीत आपकी होती है कि अगर आपको राइट लोग मिल गए, राइट कास्टिंग मिल गई, तो आपका आधा काम आसान होता है। तो वही होता है कि और नॉन एक्टर्स हो,
तो नॉन एक्टर्स में तो और वो बड़ा मुश्किल होता है कि मेरे लिए था कि मुझे फिल्म से शुरू से ही एक रियल और बड़ा ऑथेंटिक लुक एंड फील देना था। तो मैं चाहता था, क्योंकि वो जो भाषा भी है, फिल्म की भाषा है जो मराठी है, वो थोड़ी सी बाकी मराठी जो है विदर्भा, सॉरी, मराठवाड़ा, मुंबई, पुणे की मराठी उससे अलग है। उसको कहते हैं वराडी। तो उसका लहजा थोड़ा अलग होता है, एक्सेंट अलग होता है। तो इसलिए मुझे चाहिए था कि लोग वही के हो, तो वो भाषा का एक रियल, जो भाषा एकदम रियल, वो लगेंगी कि वहां के लोग मैं कास्ट करूँ तो भाषा अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए मेरा था कि वहां के एक्टर क्यों ना हो, एक्टर भी चलते थे ना, कि मेरा की शुरू से था कि मुझे नॉन एक्टर ही कास्ट करना है। अगर एक्टर भी मिल जाते मुझे वहां के तो मैं उनको कास्ट कर लेता। पर जब मैंने ऑडिशन किए थे तो कुछ एक्टर्स भी आए थे, कुछ नॉन एक्टर्स आए थे, बट मुझे ना जो होता ना कि रियलिटी ना कि वो वही के लोग हो, वही उस गांव के लोग हो, वही वही रह चुके हैं, और एक वो वाला फीलिंग होता है ना, वो मुझे कुछ लोगों में दिखा। कि जब होता है कि यार ये मुझे सविता दिख रही है, ये दौलत राव दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे लोगों को कास्ट किया। और उनके साथ जो कास्टिंग प्रोसेस तो बड़ी लंबी रही, बट मैं आपको उनके साथ जो डील करने, कैसे मैं डील किया वो बताता हूँ। क्योंकि रही बात सविता की, सविता मैं कह सकता हूँ कि बहुत टैलेंटेड लड़की है। मुझे सबसे कम काम उसके साथ करना पड़ा, क्योंकि बस हमने शूट के पहले करीब एक हफ्ता मैं और शिपाली हम गाँव गए थे, और हमने उनके साथ थोड़ा सा वर्कशॉप किया। वर्कशॉप का नॉट टिपिकल वर्कशॉप, हमें उनको एक्टिंग नहीं सिखाना था, हमें उनको रॉ ही रखना था। हम जितने रॉ है वो चाहते थे, पर उनको हमने थोड़ा खोला। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्टिफ होते ना, आप डायरेक्ट बोलते वक्त आप आपके हाथ और ऐसा ऐसे बोलते हो, तो बेसिकली हमने बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, और हल्का सा उनको कैमरा टेक्निक बताया कि कैसे होता है, क्या होता है। बट उनको हमने एक्टिंग नहीं सिखाया, क्योंकि अगर हम बोलो कि कैमरा लगा तो एक्टिंग, सबको एक्टिंग करने लगता है, एकदम जो लाउड सी एक्टिंग करने लगता है। तो ये था। और हमने सीन के दौरान भी जब मैं शूट कर रहा था, तो वो था कि जो लाइन लिखी हुई भी थी, तो मेरा था कि यार तुम्हें यही बोलना, मतलब यही बोलना है, बट तुम्हें अपनी बनाओ बेसिकली उस लाइंस को। अगर लाइन, क्योंकि एक दूसरी बात है कि क्योंकि वो स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है और मैं वो भाषा जानता हूँ, तो मैंने उसी भाषा में वो स्क्रिप्ट लिखी थी। जो डायलॉग है वो एक्सेंट भी, इवन वहां के वर्ड्स एग्जैक्टली वही आए थे। तो क्योंकि मैं जानता हूँ उसको, तो जब वो भी पढ़ रहे थे तो उनको वो अपनी भाषा लग रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने एक मराठी में, एक शुद्ध मराठी में उनको डायलॉग लिख के दे, अरे यार अब ये डायलॉग बोलने हैं। जब वो पढ़ भी रहे थे तो उनको लगा कि ये रोजमर्रा की जो बोली जाने की भाषा है वही लग रही थी उनको। तो मेरा इंस्ट्रक्शन वही था कि यार अब उस लाइन को अपना बनाओ। अगर तुम्हें कुछ एक आधी वर्ड ऐड करना है बोलते वक्त, तो आप आपस में बात करो। बहुत बात होता है कि उनसे होता नहीं था, मतलब आपस में बात करो। हम चलो बैठते हैं, चलो विराट और हम बैठते हैं और बात करते हैं, रैंडमली बात करते हैं, सुबह क्या खाना खाया, क्या गया था, फिर पता तुमने क्या सुबह से क्या क्या किया। वो बोलते कि अब मैं ऐसे किया, मैं वहां गई, मैं वहां गई, मैं वहां गई, फिर ये हुआ। एग्जैक्टली वही करो। तुम इससे बात करते हो ना, तुम्हें लाइंस को अभी डायलॉग बोलना है वो मत करो। तुम जैसे तुम अपने माँ से बात करते हो, बाप से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, सपोज सविता और बाप के बीच, माँ के बीच में सीन है, तुम अपने माँ से कैसे बात करती हो, क्या सब तो तुम ऐसे ही बात करो। यार लीलाबाई की बोला कि तुम अपने बेटे से कैसे बात करती हो, सविता से। तो उनका भी बेटा है, तो बोले कि तुम ऐसी बात करो, तुम अपनी उसकी बेटी समझो। तुम भूल जाओ कि मैंने लाइन ऐसे बोलनी है, तुम ऐसे बोल दो, ऐसे एकदम। तो हम बेसिकली हर सीन के पहले मेरा वही होता था कि उनको वो लाइन को अपना बनाओ पहले, और ऐसे ही रैंडमली उस लाइन को बोलो इधर उधर, या वो लाइन के अलावा भी बोलो कुछ। क्या किया सुबह, क्या आ गई सविता, तू कहाँ गई, कॉलेज में क्या हुआ, तूने क्या खाया, इस टाइप का। सीरियसली हम रैंडमली ऐसे बात करते थे आपस में। तो बेसिकली उनको वही, उनको उनको थोड़ा सा ईज आउट कर लो, थोड़ा सा उनको अपने इसमें आ जाओ। और दूसरी बात थी कि क्योंकि मैं सबको जानता था, क्योंकि वो उसी गांव के लोग हैं, और तो आई थिंक एक हमारा एक ना एक बॉन्डिंग भी था, और वो मेरे साथ बड़े कंफर्टेबल थे बेसिकली, और मैं उनका कंफर्टेबल था, तो उसका भी एक फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि सारे नॉन एक्टर्स थे। तो वाइड में तो जनरली सारा परफॉर्मेंस मुझे जनरली मिल जाता था, लेकिन जब भी क्लोज या वॉइस की बात होती थी, डिफरेंट एंगल की बात होती थी, तो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉन्शियस होते थे। कैमरा जैसे बड़ा कैमरा उनके सामने आ गया, तो उनको लुक की प्रॉब्लम, मैं कहा देखूं, या देखूं, वहां देखूं। तो जब चीट करना हो, क्या करना हो, तो वो प्रॉब्लम होती थी। बट आई थिंक बड़े अच्छे लोग थे, बड़े टैलेंटेड लोग थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया, आई थिंक। नहीं नहीं, सच में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और ऐसा लगा नहीं है कभी भी कि फर्स्ट टाइम कास्ट है ये तो आपने सीक्रेट डाइवल्ज कर दिया तो मैंने उठा लिया। नहीं तो ऐसा फिल्म में फिल्म में लगता नहीं है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं वो सच में, अगर इनकी एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं।
क्योंकि ये कोई वैसी फिल्म नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा साइन पोस्टिंग हो। यार आप गैलरी के लिए प्ले कर सकते हो, आप थोड़ा डायलॉग एग्जैक्टली, बातें कर सकते हो, आपके पास कोई छुपने की जगह नहीं है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली। कभी कभी मिल जाती। क्योंकि हाँ, फिल्म की ट्रीटमेंट वैसे स्लाइस ऑफ लाइफ थी, तो वो ट्रीटमेंट वैसी थी, तो इसलिए और लोग भी वैसे हैं। और दूसरी बात है कि मुझे कभी उनको नहीं कहना पड़ा कि गेट इनटू द कैरेक्टर, स्किन ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टर थे वो। तो वो दौलतराम में उसी गांव में रहते थे, उन्होंने किया, खेती बाड़ी की है। सविता और एक्चुअल कॉलेज स्टूडेंट है, लीलाबाई एक्चुअल उसी गांव की है, मदर है, ये है। तो आई थिंक वो होता है ना कि आप एक्टर को कास्ट करते हो, फिर उनको बताते हो कि देखो ये दौलतरा कैरेक्टर है, उस गांव में रहता है, वो ऐसा जीता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। वो जो काम है मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो वही उसी मिट्टी के लोग थे। वो भाषा जानते थे, उस कल्चर को जानते थे, तो उनके लिए जो कैरेक्टर स्टडी होती ना, वो नहीं करनी पड़ी उतनी, क्योंकि ऑलरेडी थे, तो मेरे लिए काम आसान हो गया। बस जो मैंने इसके पहले बताया, जो झिझक थी थोड़ी सी, जो कैमरा की झिझक थी या बोलने की झिझक थी, उस पर मुझे काम करना पड़ा। बाकी वो ऑलरेडी कैरेक्टर्स थे। तो ये एक अच्छी बात हो गई बेसिकली। मैं थोड़ी सेकंड के लिए थोड़ा जूम आउट करना चाहता हूँ। ये हम बात करें, अगर पता नहीं आप सोचते हैं इस बारे में कि नहीं, पर मैं सोच रहा था कि जो एक मराठी न्यू वेव सी बन के आ गई है, जिसमें अब आप भी शामिल हो गए, मतलब मैंने कर दिया है शामिल, अब हुए हैं कि नहीं वो नहीं पता, पर मैंने कह दिया तो अब शामिल हो गए। अभी हैं, नागराज भी हैं, और छत्रपाल भी हैं, और भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो एक नया पर्सपेक्टिव, जैसा कि आपने कहा, लेके आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उससे कुछ सिनेमैटिक लैंग्वेज में, विजुअल ग्रामर में चेंजेस आ रहे हैं कुछ, या हो रहा है, या ऑडियंसेस को कुछ नया देखने को मिल रहा है जो नहीं पहले देखने को मिल रहा था, या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ अपनी जर्नी में सो फार, जो आपने फिल्म फेस्टिवल में आप स्थल ले गए, जो आपको ऑडियंस रिएक्शन से कुछ पता चला हो? आई थिंक जैसे इसके पहले मैं जो मैं कहा था ना कि ये न्यू वेव, आई डोंट नो डेफिनेशन ऑफ न्यू वेव, बट जो भी वो मैंने बना दी है, मतलब अब नई पुरानी हो, ठीक है। तो ये नई जो ब्रीड आई है, आई थिंक जैसे मैं इसके पहले भी जवाब दिया कि अभी जो फिल्म मेकर्स आ रहे हैं ना, एक छोटे छोटे शहरों से, गांव से आ रहे हैं, वो अपनी कहानियां बता रहे हैं। तो वो मेन स्ट्रीम में भी लागू होता है, और सारी इंडस्ट्री में लागू होता है। सब मराठी इंडस्ट्री में कुछ साल पहले तक एक टाइप की फिल्में बनती थी, एंटरटेनिंग फिल्म बनती थी, जो हिंदी में होता है। कॉमेडी फिल्मों का एक दौर था दादा कोंड के जमाने में। उसके बाद अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अगर आप मराठी सिनेमा को फॉलो करते हो, तो बहुत ही एक पारिवारिक पारिवारिक तो एक एंटरटेनिंग फिल्म होती थी, बहुत ही कॉमेडी। लेकिन एक दौर था, जब्बार पटेल इनकी फिल्म आई थी, तो आई थिंक फिर स्वास्थ्य से थोड़ा सा एक रियलिज्म की तरफ हम चले गए। स्वास्थ्य में हरिचंद्र फैक्ट्री आई थी। और नागराज नागराज से और एक रियलिज्म भी आ गया, और एक एक और मराठी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी थी सैराट। तो आई थिंक वही थी कि फिल्म मेकर्स जहां से आ रहा है, जो फिल्म मेकर को, कि ये नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई लैंग्वेज इसलिए पैदा हो रही है, नई नई वॉइसेस आ रही है, आई थिंक। और ये सारे आप अपने तीनों नाम लिए, लाइक छत्रपाल हो, अब मुझे भी शामिल कर दिया आपने, तो मैं भी हूँ या नागराज भी, या बाकी लोग भी है। तो वो, क्योंकि मैं विदर्भ से आता हूँ, वहां के बहुत कम फिल्म मेकर्स है, या वहां से बहुत कम कहानियां आई है, इसलिए मेरी कहानी अलग लग रही है बाकी मराठी फिल्मों से। छत्रपाल भी उसी रीजन से आता है, नागराज एक अलग पर्टिकुलर इससे आता है, तो वो अपनी कहानी लेके आया है, तो हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे बेसिकली। तो इसलिए ये नयापन लग रहा है, क्योंकि यार इस टाइप का सिनेमा बनता है, मुंबई में बनाओ या पुणे में बनाओ, नहीं। हमने सिनेमा को, हम जहां से वहां उसको बेस किया, और वहां के लोगों को दिखाया, इसलिए वो भाषा भी अलग है, लोग भी अलग है, कैरेक्टर अलग है, दुनिया अलग है, इसलिए वो नया सिनेमा लग रहा है। और आई थिंक यही रीजन है। अब वो मराठी में भी लागू होता है, और आई थिंक हिंदी में भी लागू होता है, और आई थिंक मलयालम सिनेमा या जो भी है, आई थिंक लागू होता है। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोगों के जहन में एक एक मेरे ख्याल में एक स्टीरियोटाइप सा बन जाता है कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मराठी सिनेमा में भी अगर आप रीजनलिज्म की बात करें, तो उसका सिनेमा भी रूटेड है जहां से आप आते हैं, आप विदर्भ के रीजन से राइट, आते हैं, तो वहाँ का अलग है, सब भाषा भी अलग है, और राइट, टेक्सचर भी अलग है, तो फिल्म की लैंग्वेज भी अलग हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यार ये मराठी सिनेमा है तो इसका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, उसमें एग्जैक्टली। भी अलग अलग रंग है, अलग टेक्सचर थे। तो ये जो एक खास है कि हमें लगता है कि भाई, जब हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं हिंदी सिनेमा से हट के, उसमें भी अलग अलग रंग और अलग अलग टेक्सचर्स हैं। तो
उतनी गहराई तक अभी शायद लोग नहीं गए हैं, इसलिए वो नया लग रहा है, क्योंकि हम। हाँ, मराठी के अंदर भी महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा महाराष्ट्र है, उसमें भी चार लाइक विदर्भा है, मराठवाड़ा है, पुणे, मुंबई है, खानदेश है। तो हर रीजन का भी उसमें महाराष्ट्र के अंदर ही बहुत लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस है। तो आई थिंक इसलिए वो झलकता है। जैसे कहा ना कि फिल्म मेकर, बिकॉज ऑफ फिल्म मेकर, इसलिए कि फिल्में ऐसी आ रही है क्योंकि फिल्म मेकर वैसे आ रहे हैं। आई थिंक फिल्म मेकर ही वो अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं, इसलिए वो फिल्म में एक फिल्म से अलग अलग दिख रही है बेसिकली। नहीं तो बहुत अच्छी फिल्म है, और सच आपने कहा कि इसका जो ट्रीटमेंट है, और जो भी देखेगा, आई थिंक सबसे खूबसूरत बात है इस फिल्म के साथ कि ये बियॉन्ड कल्चर्स, बियॉन्ड बाउंड्रीज लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है। इसमें कुछ तो एक यूनिवर्सल क्वालिटी है कि वो चाहे टिफ में लोगों के साथ वैसे ही कनेक्ट कर रही है, चाहे वो यहाँ पे मामी में जब प्ले हुई तो भी वैसे ही कनेक्ट कर रही है। तो कुछ इसमें बात है, अब वो कुछ क्या है वो तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, उसके बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं। बट मुझे एक क्योंकि हम थोड़ा एंड की तरफ जा रहे हैं, जनरल से सवाल थे, क्योंकि हम हाई ऑन फिल्म्स हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको हाई ऑन फिल्म्स का जो प्ले ऑन वर्ड्स है उसके बारे में, तो ऐसी आखिरी फिल्म जिसको देख के आपको एक सिनेमैटिक हाई मिला हो, अगर आप एक फिल्म के बारे में सोचें और आपको लगे कि यार ये फिल्म थी जो देख के मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं कहीं सिनेमैटिक हाई मुझे मिला। मैंने वो फिल्म में केपरनॉम जो फिल्म है, आई थिंक लॉकडाउन में देखी थी। वो मेरी आई थिंक वो फिल्म देख के मैं, होता है ना कि जो आपकी लैंग्वेज में जो हाय है वो मिला मुझे, क्योंकि एक सोचने में मजबूर करता है। और बहुत होता है ना कि एक फिल्म आपके जहन में रहती है बहुत दिनों तक। तो आई थिंक केपरनॉम एक फिल्म है जो, आई थिंक वो फिल्म है जो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। और इवन मैंने रिसेंटली भी वो एक, अभी तक मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। और अभी रिसेंटली वापस एक फिल्म देखी थी, क्लोज, वो भी हाँ, भूमिका लुकस से। लुकस डोंट वाली, हाँ। एग्जैक्टली। बट आई थिंक मेरे लिए केपरनॉम जो लास्ट फिल्म है जो अभी तक, या जिसे बहुत असर किया मेरे ऊपर। तीन तीन ऐसे डायरेक्टर अगर आपको तीन चुनने हो, आप तीन से ज्यादा भी बता सकते हैं, जिनका काम देख के आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए हो, आपको एक सिनेमैटिक हाई मिलता हो। यार ये तीन तो हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बहुत सारे हैं, लेकिन रिसेंटली मैं ज्यादा इंस्पायर रिसेंट फिल्म मेकर से, लाइक न्यू फिल्म मेकर से, लाइक आई थिंक उमेश कुलकर्णी, मराठी फिल्म मेकर, नागराज, नागराज मंजुले, लिजो, द मलयालम फिल्म मेकर, हाँ लिजो फिल्म। मुझे उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगती है। मुझे जो उनकी पहली फिल्म थी हिमायू, वो बहुत ही बढ़िया लगी थी। तो ये फिल्म मेकर्स है। और इनके अलावा भी बाकी फिल्म निकला कि, अगेन मेरा होता है ना कि मैं फिल्म, जैसे मैं पहले बहुत बड़ा फैन था लाइक राजू हिरानी और अशोक गौरी का, जब मैंने शुरू शुरू में जब फिल्म इसमें आया था। मैं अभी भी फैन हूँ। बट कहता कि फिर एक होता ना कि आपका सिनेमा देखने का नजरिया चेंज होता है। तो मुझे जैसे राजू हिरानी की दो, मुन्ना भाई और दोनों मुन्ना भाई बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैं बाकी फिल्मों का उतना नहीं हूं, लेकिन जो पहले दो फिल्में लाइक गोवारी करके मुझे स्वदेश बहुत अच्छी लगी थी, उससे मैं कह सकता हूँ मैं बहुत इंस्पायर हो चुका था। तो क्या था कि कोई कोई फिल्में का कोई कोई काम बहुत आपको इंस्पायर करता है। बट ये जो तीन नाम लिए मुझे, ये आई थिंक मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ, इन फिल्म मेकर से। और बाकी जैसे मैंने कैपरनॉम की बात की, या वन ऑफ जो फिल्में मैंने देखी, या मुझे ईरानी सिनेमा पसंद है, लाइक चिल्ड्रन ऑफ हेवन मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है मेरी, या बहुत सारी है। तो मैं फिल्में करने कहूंगा, लेकिन उनकी फिल्में, कुछ फिल्में मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। कोई भी अच्छा सिनेमा दिल को छुए बस। और क्योंकि अब आप डायरेक्टर बन चुके हैं, तो एक डायरेक्टर वाला सवाल ये है कि फिल्म मेकिंग के बारे में एक ऐसी चीज जो बाहर की ऑडियंस हो, जैसे जो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से हम जब फिल्म देखते हैं तो उन्हें शायद समझना चाहिए, पर वो नहीं समझते फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में या फिल्म देखने के नजरिए के बारे में। अगर आप कुछ इनसाइट पास ऑन कर सकें कि यार फिल्म बनाते हुए मुझे ये समझ में आया, जो मैं अगर दूसरी साइड पे था एज ए फिल्म व्यूअर या वॉचर, तो मुझे वो प्रोसेस के बारे में नहीं पता था। एज ए फिल्म मेकर मैं कहूंगा कि मेरा जो तरीका है कि मैं एक तो फिल्म, आपको जो फिल्म बनानी है वही बनाओ, किसी से
इन्फ्लुएंस मत हो कि सोसाइटी में इंडस्ट्री में ही चल रहा है, ये वर्क करेगा, यहाँ पे होगा, ये कांस में कौन सी जाती है, टिप में कौन सी जाएगी, मामे में कौन सी जाएगी, ये मत सोचो। आपकी कहानी क्या है उसके हिसाब से बनाओ। इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि ऐसी फिल्में चलती है, ऐसी फिल्में फेस्टिवल में चलती है, ये मत सोचो। वही कि सिंपल तरीका है कि आप फिल्म देखते वक्त और बनाते वक्त, बेसिकली फिल्म आपको दिल से बनानी है, दिमाग से नहीं। ये मेरा ये है कि वही है कि आप जब फिल्म देखते भी हो तो बहुत ज्यादा उसमें लॉजिक, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, वो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप बहुत सोचो मत, जब जस्ट एक लेमैन टाइप से आप फिल्म देखो और दिल से देखो। फिल्म के बाद उसकी आप बहुत दिमाग मत लगाओ, फिल्म में बाद दिमाग लगा सकते हो, बनाते वक्त भी आप दिल से बनाओ। क्योंकि होते ना कि आप कि जैसे मैं पहले बात कर चुका कि ये वर्क करता है, आपने यहाँ पे किया, इस मिनट पे ये आना चाहिए, यहाँ पे एक जोक होना चाहिए था, यहाँ पे गाना आना चाहिए, यहाँ पे, तो बहुत दिमाग मत लगाओ। अगर आप ऑर्गेनिक होते हैं ना, आप दिल से आप कैरेक्टर की जर्नी फॉलो करते हो, तो आई थिंक एक अच्छा काम कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत है कि आप अपनी सुनो, अपनी इंस्टिंक्ट सुनो, इंस्टिंक्ट से काम करो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ और बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ। मतलब ये रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करना है कि मतलब ये चलता है इसीलिए मैं ये डाल दूं, या ये इसको पसंद आएगा तो इसलिए ये करते हैं, ये वो करते हैं। जो आपको कहना है वो कहिए। बट एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली ऐसे फिल्म में मैं कह सकता हूँ, आई थिंक अगर आप स्टूडियो सिस्टम में काम कर सकते हो, आपके ऊपर भी होता है, तो आई थिंक हर जगह वर्क नहीं करेगा। बट आई थिंक अगर आपको फ्रीडम फ्रीडम दिया है तो आप अपनी सुनो, अपनी बात करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली आप इनपुट लो, आप, मैंने कहा कि सबको नकार लो एक बार, आप सबकी सुनो, आप सबकी अच्छे इनपुट ले लो, बट आपको एक होता है कि आप अपनी 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 आवाज सुनो, आपके दिल की आवाज सुनो, आप अपने इंस्टिंक्ट से काम करो। आप 10 लोगों की फिल्म दिखाओगे तो आपको हर एक का एक सब्जेक्ट होता है, बोलते कि यार नहीं ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये वर्क करना है। आप यार 10 लोग साथ में फिल्म देखोगे तो बोलते हैं उसके 5 लोगों को पसंद आएगी, 5 लोगों को नहीं आएगी, 4 लोगों को आएगी, 6 लोगों को नहीं आएगी, तो बड़ा सब्जेक्टिव होता है। लेकिन आप जब फिल्म बनाते हो तो आपको जो फिल्म बनानी है वही बनाओ। आप ऑब्वियसली आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है या आपके जो टीममेट्स है, आपके क्रू है, उनके इनपुट लो, लेकिन जो आपका विजन है, जो आपका सुर है कहानी का, वही लगाओ। सारे सुर वो बेसुर होता है फिर। आपका सुर है कहानी का, वही लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात हो गई है। तो एकदम फिलोसफी वाला एक फिलोसफिकल टच हो गया। तो क्या नोट है, इस पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जयंत। बहुत अच्छा लगा बात करके। पिक्चर भी बहुत अच्छी है, आपके इनसाइट्स भी बड़े मजेदार हैं, और सच में ऐसा लगा कि मतलब फिल्म देख के जो एक फीलिंग हुई कि यार इसमें जो नयापन है, वो आपके साथ बात करके भी वही लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं केरला में। मतलब मुझे यकीन है, अब तो मैं उम्मीद भी नहीं कहूंगा, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी उसको रिसेप्शन मिली है सब जगह। केरला में भी अच्छा ही होगा, और इसके बाद भी आई होप कि सब जगह ट्रैवल करे। और मैं भी वही चाहता हूँ कि लोगों तक पहुंचे और जल्द से जल्द थिएट्रिकल रिलीज हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेस्टिवल जर्नी भी हो, और क्योंकि वही है कि हमने फिल्म बनाई है, लोगों को पसंद आ रही है, तो हम कोई भी फिल्म चाहेगा, मैं नहीं, कि यार लोग देखें, जिनके लिए फिल्म बनाई है, आम जनता जो है वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच। बाकी आपकी अगली फिल्म का इंतजार रहेगा, जल्दी जल्दी बनाइए ताकि हम फिर से बात करें। जल्दी बनाते हैं। ठीक है। So that was Jayant Somalkar, the director of Sthal, A Match, having a conversation about his film. You can actually catch Sthal at the upcoming International Film Festival of Kerala from the 8th of December to the 15th of December next month. If you haven't watched it already, at the Geomami Film Festival or the Dharamshala International Film Festival. It's a wonderful, wonderful film, and I highly recommend it. You can also read our review of Sthal at highonfilms.com. For more such interviews and reviews, please go and follow High On Films at our website, YouTube channel, or on Spotify. Till next time, this is Virat Nehru, film critic and film programmer, signing off. Goodbye.